નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે આપણે એક એવા વિષય પર ચર્ચા કરવાના છીએ જેને સંવેદનશીલથી અતિ સંવેદનશીલ સુધીમાં આપણે વર્ણવી શકીએ. વિષય છે ભારતમાં બહુમતી અને લઘુમતી વચ્ચેના સંબંધોનો. અને એ વિષયને જેમણે છેડ્યો છે એ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સરસંઘ ચાલક ભાગવતજીએ છેડ્યો છે. એટલે એ વધારે અગત્યનો બની જાય છે. અને આ ચર્ચા કરવાની હોય ત્યારે આ વિષય અંગે અધિકૃત રીતે વાત કરી શકે તેવા વિદ્વાન પેનલિસ્ટ પણ જોઈએ. મોટા ભાગે તો આ ચર્ચાને આપણે દૂર જ રાખીએ છીએ, પણ ચર્ચા નહીં કરવી એ કોઈ પ્રશ્નનો ઉકેલ નથી. ચર્ચાથી જ પ્રશ્નો ઉકલી શકે છે અને ચર્ચાથી જ સત્ય સામે આવી શકે છે. ત્યારે આજે આપણી સાથે આ ચર્ચામાં ને અંજામ આપવા માટે, જોડાવા માટે એક એવા વ્યક્તિ વિશેષ છે જે માત્ર ભારતમાં નહીં પણ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે પણ ખ્યાતિ પ્રાપ્ત છે. જેમણે ભારતના વડાપ્રધાન સાથે એમના સલાહકાર તરીકે કામ કર્યું છે, જેમણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ સાથે, અધ્યક્ષ સાથે એમના સલાહકાર તરીકે કામ કર્યું છે. અને આ બધું હોવા છતાંય એ માત્ર રાજનીતિના જીવ નથી, એ પત્રકાર પણ છે અને દેશની સર્વોચ્ચ ટેકનિકલ યુનિવર્સિટી અથવા દેશની સર્વોચ્ચ યુનિવર્સિટી એવી ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી મુંબઈના પૂર્વ વિદ્યાર્થી પણ છે. આવા વ્યક્તિ આપણને આ ચર્ચા માટે મળે એ મને લાગે છે કે આપણું સૌનું સદભાગ્ય છે. અને ગુજરાત સમાચાર ટેલિવિઝન પર આ પ્રકારની ચર્ચા રજૂ થઈ રહી છે ત્યારે ગુજરાત સમાચાર ટેલિવિઝનના દર્શક મિત્રો માટે પણ આજનો દિવસ એ આવા સંવેદનશીલ વિષય પર ખુલ્લા મને વાત થાય અને એના વિશે જાણકારી મળે એ માટેનો એક સોહામણો દિવસ છે એમ કહીએ તો જરાય અતિશયોક્તિ નથી. દોસ્તો, વાત કરું છું સુધીન્દ્ર કુલકર્ણીજીની. સુધીન્દ્ર કુલકર્ણીજી એ મેં કહ્યું તેમ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી મુંબઈમાંથી ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત છે. શરૂઆતમાં સામ્યવાદ તરફ ખેંચાયા, પણ 1996માં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા. વાજપેયીજી સાથે એમના સલાહકાર તરીકે કામ કર્યું. દિલ્હી લાહોર બસ સેવાની પહેલી ખેપ ગઈ, પહેલી ટ્રીપ, એમાં અટલજીની સાથે બસ પર સુધીનજી પણ સવાર હતા. 2008માં લાલકૃષ્ણ અડવાણીજી માટે વ્યૂહરચનાકારની ભૂમિકા ભજવી અને 2009માં ભારતીય જનતા પાર્ટીને રામ રામ કરી રાજીનામું આપ્યું. 2012માં પાછા ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન ગડકરીજીના સલાહકાર બન્યા. અને ભારત ચીન મિત્રતા કઈ રીતે વધે તે અને સંઘ સાથે જોડાયેલ સંસ્થાઓના ભારતીય વ્યવસ્થા, ભારતીય જનતા પર પ્રભાવ અંગેની બાબતોના સુધીનજી બહુ અચ્છા જાણકાર છે. આજે આપણે ચર્ચા કરવી છે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સરસંઘ ચાલકજીએ હિન્દુ મુસ્લિમ ऐक्य અને એને સંદર્ભમાં જે વિચારો व्यक्त કર્યા છે તે અંગેની. सुधीन जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में. हम गुजरात समाचार के दर्शक मित्रों की ओर से हमारी निजी हैसियत से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हमें आपकी जो इस बारे में सोच है वो जानने का लाभ मिलेगा. चर्चा की शुरुआत करते हैं सुधीर जी, जैसे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के श्रीमान ख्वाजा अहमद जी की किताब द मीटिंग ऑफ माइंड्स आई, ए ब्रिजिंग इनिशिएटिव, इसके विमोचन प्रसंग पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया श्री मोहन भागवत जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के विषय पर जो बात कही काफी दिलचस्प है. उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता और जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं ये हिंदुत्व के विरोधी हैं
भारत में एकता के बिना विकास संभव नहीं हो सकता और राजनीति देश की एकता खत्म करने का एक हथियार है। यह सोच के साथ आप किस हद तक सहमत है और आपकी निजी सोच क्या है इस सब चीजों के बारे में? नमस्कार गुजरात समाचार टीवी के दर्शकों, डॉक्टर जय नारायण व्यास जी, आपको धन्यवाद। आपने मुझे आपके मंच पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, संवेदनशील विषय पर बातचीत करने के लिए मुझे बुलाया जी। और गुजरात के प्रबुद्ध जनता के सामने इस विषय पर मेरे विचार रखने का एक अच्छा मौका मुझे मिला है जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर मोहन भागवत जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं, मैं कहूंगा कि वे बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता, यह संघ में बहुत इस पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से या कहूंगा कि कुछ वर्षों से डॉक्टर मोहन भागवत जी इस विषय को लेकर अपने विचार बहुत ही सीधे तरीके से, डायरेक्टली, कैंडिडली लोगों के सामने रख रहे हैं जी। और अब 1.5 महीना पहले डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद, उनकी लिखी हुई ये किताब ए ब्रिजिंग इनिशिएटिव, इसका विमोचन करते हुए डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो भाषण दिया, जो YouTube पर मौजूद है, मैं उस पूरा भाषण सुनने के बाद मुझे लगा कि डॉक्टर मोहन भागवत जी ने इस विषय के डिबेट में एक बहुत ही सकारात्मक, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की। उस अवसर पर उन्होंने जो बातें कही है, इसे हिंदू भी गौर से सुने, मुसलमान भी गौर से सुने, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता भी बहुत गंभीरता से इन विचारों को सुने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम एक ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जिसमें ना हिंदू का वर्चस्व हो, ना मुसलमान का वर्चस्व हो, लेकिन राष्ट्रहित का वर्चस्व हो। जी, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। सही। उन्होंने ये भी कहा, जिसका जिक्र आपने किया, कि मॉब लिंचिंग करना यह हिंदू धर्म के खिलाफ है, यह संविधान के खिलाफ तो है ही, लेकिन यह हिंदू धर्म के भी खिलाफ है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह कहना चाहिए था, मॉब लिंचिंग का कंडेमनेशन, इसका निषेध प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, लेकिन आरएसएस के चीफ डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है, यह नहीं होना चाहिए, और जिन्होंने किया है उन पर कानूनी तौर से कार्रवाई होनी चाहिए जी। अपने भाषण में उन्होंने और एक बात कही। उन्होंने कहा कि आज देश में ऐसा माहौल है, इस माहौल में भारत के मुसलमान अविश्वास और अलगाव महसूस कर रहे हैं, एलिनेशन एंड इनसिक्योरिटी। जी। यानी आरएसएस के चीफ को यह कहना कि भारत में मुस्लिम समाज में अविश्वास है और अलगाव, यानी एलिनेशन, सेपरेटिज्म, अलगाव का मतलब सेपरेटिज्म नहीं है, एलिनेशन, यानी उन्होंने एडमिट किया कि ये है, और उन्होंने यह भी कहा कि हमें इसे मिटाना होगा, और इसे मिटाने के लिए हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा और लंबे अरसे तक काम करना पड़ेगा। जी। डॉक्टर मोहन भागवत जी का यह विचार, मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है और डॉक्टर मोहन भागवत जो कह रहे हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर एक प्रदेश में और पूरे देश में भी देश को, समाज को मुस्लिम और हिंदू के बीच बांटने की राजनीति कर रही है, कम्युनल पोलराइजेशन की राजनीति कर रही है। अभी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक भाषण दिया है कि भारतीय जनता पार्टी आने से पहले जो राशन
वो सब अब्बाजान वाले ले जाते थे। यानी खुलेआम इस प्रकार से कहना और एक कम्युनिटी को जी टारगेट करके कहना, क्या इससे अलगाव और अविश्वास बढ़ेगा नहीं? तो इसे देखते हुए डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा। इसके अलावा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा कि समाज को पॉलिटिक्स जोड़ता नहीं है, तोड़ता है। पॉलिटिक्स यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पार्टी की पॉलिटिक्स तोड़ता है, इस पार्टी की पॉलिटिक्स जोड़ता है। पॉलिटिक्स एज अ होल इज डिवाइडिंग सोसाइटी, और हमारा काम है कि हमें समाज को फिर से जोड़ना है। जी तो इस प्रकार के अच्छी बातें जो डॉक्टर मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में किया है, इस पर बहुत पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि हमारे मुस्लिम भाई इसका स्वागत करें और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ वो एक डायलॉग शुरू करें, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक खुले दिल से मुस्लिम समाज के साथ चर्चा शुरू करें, डायलॉग शुरू करें। सुधीर जी, बात तो बहुत अच्छी लगती है जो आपने कही। तो बात में मैं नहीं मानता कि किसी को भी विरोध होगा, क्योंकि इस देश में ये एक हिंदू समाज है, एक मुस्लिम समाज है। अगर दोनों आपस में लड़ेंगे तो देश का कुछ भला नहीं होने वाला है। तो एक हद तक भागवत जी ने जो बात कही वो बिल्कुल डंके की चोट पे कही है उन्होंने। मगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये भागवत जी की जो बात है सुनने में तो अच्छी लगती है, मगर संघ परिवार की विचारधारा से निकलकर आने वाली कई संस्थाएं जो एक तरह से कट्टर हिंदूवाद का समर्थन करने का दावा करती है, उसको काबू में रख पाने में संघ सफल रहेगा, या फिर भागवत जी का यह मंतव्य सिर्फ ख्वाजा अहमद की पुस्तक संदर्भित और उस समय वहां हाजिर ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए एक मर्यादित संदर्भ में ही लेना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसकी सोच में और इसके आचरण में एक विरोधाभास है। कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन कुछ बातों को लेकर हिंदुओं के मन में और मुसलमानों के मन में भी शंका पैदा होती है, जिसका जिक्र आपने किया। क्योंकि संघ परिवार में और संघ परिवार से जुड़े हुए ऐसे कई संगठन हैं जो उनकी वाणी और उनका आचरण, यह डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो कहा है इसके तद्विरुद्ध है। मुस्लिम समाज के प्रति एक घृणा की भावना, हेट्रेड बढ़ाना, दूरी बढ़ाना, यह काम कई सारी संगठन कर रहे हैं, जिसका एक मॉब लिंचिंग उदाहरण है। दंगे होते हैं और उन दंगों में न्याय नहीं मिलता। अभी अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में जो दंगे हुए पिछले साल, इसके पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो एक सेंश्योर की है, क्रिटिसिज्म किया है, आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल खराब से अति खराब इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो इसके लिए जवाबदारी कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इतना ही नहीं, पिछले साल जब दंगे हो रहे थे और उसके एक भारतीय सरकार का एक मंत्री, जूनियर मंत्री, खुलेआम एक पब्लिक मीटिंग में कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये एक मंत्री कहता है, और उस मंत्री को बाद में अब प्रमोशन मिलकर कैबिनेट रैंक दिया गया है। ये कितनी एक विडंबना है। तो इसलिए आपका जो सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहना, लेकिन इस पूरा जो हिंदुत्व परिवार है, इस हिंदुत्व परिवार का आचरण, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है, और इस पर भी गंभीर चर्चा होनी चाहिए और करेक्शन होना चाहिए। सही बात है आपकी। और एक बात मैं और इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि ये जो संगठन है, वो अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं और उनको उनकी दुकान चलानी है। तो उसकी वजह से जो चीजें उनको राज आती है वो करते हैं।
जैसे आपने कहा कि राजनीति सबसे बड़ा तोड़ने का काम करती है, मगर राजनीति के बिना तो लोकशाही संभव नहीं है। और जब तक लोकशाही रहेगी, सिर्फ मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ ये पार्टियां जो है वो सिर्फ लघुमती के सामने ये बात करके लघुमती और बहुमती को तोड़ने का काम करते, हिंदू समाज को भी विभाजित करते हैं। ये इसका ये विभाग है, ये सेल है, वनवासी संगठन है, शेड्यूल कास्ट का संगठन है, इसका संगठन है। इतने महीन महीन भाग ये लोगों ने अपनी पॉलिटिकल मंशा को सिद्ध करने के लिए किए हैं कि न सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच में विभाजन की बात है, हिंदू समाज के बीच में भी उन्होंने कहीं न कहीं विभाजन की ये जो तरकीब है उसका बहुत सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। तो क्या आप मानते हैं कि ये लोकशाही की वजह से हो रहा है? और भागवत जी का ये कहना था कि राजनीति की वजह से होता है, तो क्या इस देश में से लोकशाही को हम निकाल दें और एक तरह से गाइडेड डेमोक्रेसी या मर्यादित लोकशाही का प्रयोग करें? क्या करना चाहिए? देखिए, भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र रहेगा, और लोकशाही को, लोकतंत्र को और मजबूत करना पड़ेगा। और आज लोकतंत्र में विभिन्न पार्टियां होंगी, हमारी बहुदलीय लोकतंत्र है। इट्स नॉट अ वन पार्टी सिस्टम जो चाइना में है या और किसी देश में हो सकता है, लेकिन भारत में जो लोकतंत्र है यह बहुदलीय लोकतंत्र है और ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें किसी एक कम्युनिटी का अपीजमेंट करें या एक कम्युनिटी को ही उसी के वोट को लेकर सत्ता में रहने की कोशिश करें। कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, उसका सबसे पहला कमिटमेंट होना चाहिए वो संविधान के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो तो बिल्कुल साफ है और कोई भी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकता है, ना जाना भी नहीं चाहिए। इस सिलसिले में डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो कहा, इसका मैं आज की इस चर्चा में लाना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है जी। 2018 में डॉक्टर मोहन भागवत जी ने एक लेक्चर सीरीज की दिल्ली के विज्ञान भवन में, काफी चर्चा हुई थी। उसका शीर्षक था भविष्य का भारत, जी, इंडिया ऑफ द फ्यूचर जी। और इस चर्चा में उन्होंने शुरुआत ही की कि हम संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, वी आर कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अपने भाषण में उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल को पढ़ा और उन्होंने कहा कि इस प्रियम्बल में जो कुछ है हमें मान्य है, इट इज एक्सेप्टेबल टू अस। और हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान के प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म है जी, सोशलिज्म है, डेमोक्रेसी है। तो इसका मतलब है कि संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेक्युलरिज्म को मानता है जी। जब यह बात आई तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही एक बड़े नेता राम माधव जी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा और कहा कि यह तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रॉइका हो रहा है। ग्लासनोस्त यानी ओपननेस, पेरेस्ट्रॉइका यानी रिस्ट्रक्चरिंग, जो सोवियत यूनियन में गोर्बाचेव ने इसे मशहूर किया था जी। तो उनका कहना था कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ग्लासनोस्त हो रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग की शुरुआत हुई है डॉक्टर मोहन भागवत जी के कारण। यानी इतना महत्वपूर्ण बदलाव संघ में लाने की कोशिश भागवत जी कर रहे हैं जी। तो इसका एक ही संदेश जाना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो जो मानते हैं उन्हें संविधान को मानना चाहिए और साथ ही साथ संविधान के जो प्रियम्बुलर प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, भातृभाव, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब को मानना चाहिए और जो मानते नहीं है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जी।
यानी आज जो हम एक भारतीय जनता पार्टी एक दिशा में जा रही है और मोहन भागवत जी कुछ और कह रहे हैं, यह जो विरोधाभास है यह बंद होना चाहिए। सही बात कही आपने। ये विरोधाभास ही ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन खड़ा करने का काम करता है। और आपने जो इससे प्रेरित होके आपका जो इस पे आर्टिकल लिखा है, आपने लेख लिखा है, उसमें भी आपने यही बात कही है। आपने प्रश्न किया है कि भागवत्स ग्लासनॉट इन आरएसएस, मुस्लिम टाइज वेलकम, बट कैन ही रेन इन मोदी एंड आदित्यनाथ। तो ये जो बाकी की संस्थाएं हैं जो आरएसएस से अपनी उद्गम बिंदु रखती है और आरएसएस से ही उदित हुई है, तो वो क्यों यही बात नहीं करते? क्यों उनके सुर अलग अलग आलाप, उनका आलाप अलग होता है? क्या ये एक कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत है या फिर ये संघ के काबू में नहीं है? क्या इसका आपके मत के अनुसार क्या इसका रीजन है? आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आज जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नहीं है, और मैं कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नहीं रहा, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाहर के लोगों में यही सवाल उठता है, यही संदेह उठता है कि कहना और करना इसमें अंतर क्यों है? जो संघ परिवार के ही हिस्से हैं या संघ परिवार के साथ रिश्ता जिनका है, क्यों वे एक समाज को तोड़ने की और विशेषतः मुस्लिम समाज को एक अलग थलग करने की जो कोशिश किए जा रहे हैं, इस पर राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक संघ और डॉक्टर मोहन भागवत भी इस पर चुप्पी क्यों साध रहे हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जी। और मैं चाहता हूं कि जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मुस्लिम समाज के बीच डायलॉग होनी चाहिए, उसी तरह संघ परिवार के भीतर भी डायलॉग होना चाहिए। ये जो कहना और करने के बीच जो अंतर है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, जिसमें मैं दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार इस प्रकार के कम्युनल पोलराइजेशन का काम करते हैं। यदि चुनाव आया तो कब्रिस्तान स्मशान की बात करना, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इर्द गिर्द के जो संगठन हैं, उनके बीच में भी एक डायलॉग होना चाहिए। खैर, ये इनकी जो एक कोऑर्डिनेशन की बैठक तो होती रहती है संघ परिवार की जो संस्थाएं हैं उनके बीच। तो अभी समय हो रहा है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का। ब्रेक के बाद में जब आपके पास वापस आऊंगा तो जानना चाहूंगा कि ये सब चीजें जो है, जो आप बता रहे हैं और जो आप कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वह होता क्यों नहीं है? ये आपसे हम पूछेंगे इसके बारे में एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। दर्शक मित्रों, रोकाइए एक नानकड़ा कमर्शियल ब्रेक માટે। ब्रेक પછી પાછી આ ચર્ચા ચાલુ રહેશે। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, બ્રેક પછી આ અત્યંત સંવેદનશીલ પણ અગત્યની અને રાષ્ટ્રીય હિત માટે જેના પર ખુલ્લી ચર્ચા થવી જોઈએ એવા વિષય અંગેની ચર્ચામાં આપનું પુનઃ સ્વાગત છે। सुधीर जी, मैं आपको पूछ रहा था कि ये जो एक संकलन बैठक होती है जिसमें संघ परिवार की सभी संस्थाएं और संघ परिवार के जो अधिकारी है, संघ के और संघ परिवार के अधिकारी उसमें भाग लेते हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि चर्चाएं नहीं होती होगी या फिर जानबूझकर कुछ चीजें उछाली जाती है? ये कोऑर्डिनेशन, वहां एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, डायलॉग का मैकेनिज्म है। संघ परिवार के विभिन्न संगठन, उनके प्रतिनिधि, उनके नेता, और ये अच्छी बात है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। लेकिन जो संघ परिवार के बाहर है,
जैसे मैं हूं, उनके मन में यह प्रश्न उठता है, तो क्यों इन सब डॉक्टर मोहन भागवत जी, ये तो संघ परिवार के पितामह हैं, ही इज द पेट्रियार्क ऑफ द संघ परिवार, वो कुछ कह रहे हैं तो जमीनी स्तर पर और पॉलिटिकल सिस्टम में यह आचरण में क्यों नहीं आ रहा है? जब डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा अपने भाषण में, डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद के किताब के विमोचन के समय, कि पॉलिटिक्स डिवाइड्स, पॉलिटिक्स डज नॉट यूनाइट, तो उनका इशारा था कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स ऑल्सो डिवाइड्स। तो सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या पार्टी अध्यक्ष हो, तो क्यों वे यह खुलकर नहीं कहते हैं कि हम मॉब लिंचिंग होने नहीं देंगे, हम इसका निषेध करते हैं, हम मुस्लिम समाज में अविश्वास, अलगाव, असुरक्षा होने नहीं देंगे, कानून सबके लिए बराबर हो और पुलिस सबके लिए बराबर हो, न्यायपालिका सबके लिए बराबर हो, यह खुलेआम क्यों नहीं कहते हैं? जब गलत होता है तो उसके खिलाफ बोलना क्या प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं है? तो यह सवाल उठते हैं। और जैसे आपने कहा कि इनके कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म में, प्लेटफॉर्म पे ये सवाल उठने चाहिए, नहीं तो डॉक्टर मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं उसी पर सवालिया निशान उठेगा। क्या इसमें प्रामाणिकता है या नहीं? सही बात कही आपने, क्योंकि पारदर्शिता अगर नहीं रहती है और करनी और कथनी में अगर फर्क है, तो स्वाभाविक है इस तरह के प्रश्नों का उठना। और ये प्रश्न अगर उठे तो भागवत जी ने जो बात कही है वो बात से कहीं दूर हम चले जाते हैं। तो विभाजन की प्रक्रिया में राजनीति जिम्मेवार है, वो तो आज हर कोई चुनावी राजनीति में जितने भी पक्ष है वो सब यही करते हैं, अपनी अपनी डपली बजा के अपनी अपनी तरह से अपना माल बेचने का काम में लगे हुए हैं। तो ये जो एक राष्ट्र भावना की बात है कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इतनी चीजें तो हम नहीं करेंगे। तो ये इस तरह की एक आचार संहिता पहले संघ ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के तहत खुद तैयार करे, भारतीय जनता पार्टी को रास्ते पे ले जाने का प्रयत्न करे, और उसके बाद और पॉलिटिकल पार्टीज में भी, क्योंकि संघ का जो कहना है वो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनका जो काम है वो हिंदुत्व को बढ़ावा देने का है, मजबूत करने का है। और ये अगर बात हम मद्देनजर रखें तो सब पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठ के इस मुद्दे पे डायलॉग शुरू हो सकता है। तो ये सब चीजें पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के तहत होनी चाहिए। सुधीर जी, फिर से आपके पास आता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि मोहन भागवत जी भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए कोई नई धरती खोजने का प्रयास कर रहे हैं? क्या यह प्रक्रिया को एक पुराने संस्कृत अवलोकन के साथ जोड़कर हम देख सकते हैं, जो कहता है सेतु बंधनम सर्वरंजनम, सेतु बंधनम मार्ग साधनम, सेतु बंधनम स्नेह कारणम, सेतु बंधनम विहिता तारणम? क्या इस तरह का सेतु बंधन ये दोनों समाजों के बीच हो सकता है, जहां ये एक दूसरे के साथ बढ़ी हुई समझ के जरिए एक तरह की समझदारी का पुल बांध सके, और अंतिम उनका लक्ष्य यही हो कि भारत हमारा देश है और राष्ट्र हित में जो है वो होना चाहिए? तो क्या मानते हैं आप, ये जो प्रक्रिया है उसके बारे में क्या कहना है आपका? सेतु बांधना यह अत्यावश्यक है और भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। भारतीय समाज हमेशा संवाद और सेतु बांधना इसमें विश्वास रखता है। जब कभी डिफरेंसेस होते हैं, हमें विवाद नहीं चाहिए, संवाद चाहिए, हमें टकराव नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। तो भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी भारत एक है। तो जहां कुछ
डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, तो इन दोनों कम्युनिटीज के बीच सेतु बांधना यह एक लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। होनी चाहिए। मैं गुजरात में हूं, महात्मा गांधी की धरती पे हूं, और महात्मा गांधी की महत्ता किसमें थी? यानी बहुत बहुत सारी चीजों में उनकी महत्ता थी, लेकिन सबसे बड़े वो एक योद्धा थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। उनसे कोई बड़ा योद्धा भारत में पैदा नहीं हुआ है। आखिर में उनकी शहादत, उनका बलिदान, वह भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ही हुआ। जी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, गोडसे, उनका महिमा मंडन भी इसी हिंदुत्व परिवार में हो रहा है। क्या यह एक्सेप्टेबल है? तो हम देख रहे हैं कि एक कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोसेस संघ परिवार में हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जिस हद तक वो अच्छी बातें कर रहे हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी, इसका स्वागत होना चाहिए। विशेषता मुस्लिम समाज में होना चाहिए। और मुस्लिम समाज में जो कट्टरता है, मुस्लिम समाज में जो उग्रवाद है, एक्सट्रीमिज्म है, फेनेटिसिज्म है, उसके खिलाफ मुस्लिम समाज में ही आवाज उठे जी। और इससे सेतु बांधने के काम में बहुत एक मजबूती आएगी जी। इस संदर्भ में मैं एक बहुत ही ऑन पर्सनल लेवल मैं हिंदू मुस्लिम हार्मोनाइजेशन और इंडिया पाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन के लिए मैं काम करता आया हूं। एक उदाहरण देना चाहता हूं डॉक्टर व्यास जी। मेरे पास एक किताब है, इस पुस्तक का शीर्षक है फतवा, फतवा ऑन टेररिज्म एंड सुइसाइड बॉम्बिंग्स, फतवा ऑन टेररिज्म एंड सुइसाइड बॉम्बिंग्स। इसके लेखक हैं पाकिस्तान के एक मशहूर इस्लामिक स्कॉलर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी। ये गुजरात भी आए थे कुछ साल पहले, और इस पुस्तक का इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है, इंट्रोडक्शन बाय सुधींद्र कुलकर्णी। उन्होंने मुझे कहा कि आप इस किताब का इंट्रोडक्शन आप लिखिए, और इस किताब में उन्होंने होली कुरान का हवाला देकर उन्होंने कहा है कि जो इस्लाम के नाम पर एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म कर रहे हैं, सुइसाइड बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल इस्लाम के कोर प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। ये कितने लोग हिंदू समाज में या संघ परिवार में जानते हैं? तो मेरा यह उल्लेख करने का उद्देश्य यही है कि हमें आज सेतु बांधना है जी। सेतु बंधनम, बिल्डिंग ब्रिजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑफ ट्रस्ट। यह कब होगा? जब हम मुस्लिम समाज के साथ बात करेंगे, और मुस्लिम समाज आकर हिंदू समाज के जो नेता हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं, विश्व हिंदू परिषद है, इनके साथ बात करें। मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में जमाते इस्लामी के हेडक्वार्टर्स पर गया। मैं 3 घंटा उनके जो प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, उन सब के साथ मैंने बात की, और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप डॉक्टर मोहन भागवत जी के साथ डायलॉग के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह डायलॉग जो है ये नीचे से ऊपर तक जानी चाहिए, केवल ऊपर ही ऊपर नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी वन इवेंट, यानी मोहल्ले मोहल्ले में हिंदू और मुस्लिम के बीच सेतु बंधनम होना चाहिए, शहर शहर में होना चाहिए, तो बात बनेगी। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं डॉक्टर व्यास जी, आपने बिल्कुल ये सेतु बंधनम का ये जो आपने संस्कृत में पढ़ाया है, ये इतना इसमें विवेक है। इट इज सच अ वाइज सेइंग। इस प्रकार का सेतु बंधनम का काम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर करें तो भारत एक बहुत एकनिष्ठ, मजबूत देश बनेगा, और इस एकता के आधार पर हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं।
और भारत को बहुत आगे ले जा सकते हैं। भारत के सामने जो आज समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं, ये समस्याएं हिंदुओं के सामने भी है, मुसलमानों के सामने भी है। गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, द प्रॉब्लम ऑफ होमलेसनेस। तो ये सब जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, क्या एकता के बिना हम इन समस्याओं को हल कर सकते हैं? और ये समस्या तो बिल्कुल दोनों नहीं। समुदाय को स्पर्श करती है। सभी को ऐसा नहीं कि केवल पिछड़ापन मुसलमानों में है, पिछड़ापन तो हिंदुओं में भी है। तो इसलिए एक राष्ट्रहित के लिए जो मोहन भागवत जी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि ना हिंदू का वर्चस्व ना मुस्लिम का वर्चस्व, राष्ट्रहित का वर्चस्व सर्वोपरि रहे। राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता और एकात्मता। जी सुधीर जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, मगर एक और मुद्दे पे मैं आपके ध्यान पे रखना चाहूंगा। आपके मागो वैद्य जी से अच्छे संबंध रहे, और मागो वैद्य जी का एक विधान है कि आप ये बात समझ लीजिए कि भारत का विभाजन नहीं हुआ होता और दोनों कौम शांतिमय सहअस्तित्व को आगे बढ़ाते हुए प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुई होती, अगर अंग्रेजों का शासन हमारे पे नहीं आया होता। क्या इस तरह की सोच इतिहास के पन्ने पलटकर आज भी परिस्थिति को बदल सकती है? बिल्कुल। मागो वैद्य एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, और मैं नागपुर में उन्हें मिलने के लिए घर गया, और बहुत ही छोटा घर, बहुत ही सिंपल लिविंग। मैं बहुत आकर्षित हुआ उनके प्रति, रिस्पेक्ट बढ़ा। तो हमारे बातचीत में मागो वैद्य जी ने कहा कि यदि यहां अंग्रेज नहीं आए होते तो यहां हिंदू मुस्लिम हार्मनी बहुत बढ़ जाती। जो डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भी अपने भाषण में कहा है कि भारत में इस्लाम जो है वो अरब इस्लाम से बिल्कुल अलग है। यहां बहुत सारे संत महात्मा हैं जिनको मुसलमान मानते हैं, बहुत सारे सूफी संत हैं जिन्हें हिंदू मानते हैं। तो मागो वैद्य जी का यह कहना कि यदि ये अंग्रेज नहीं आते तो भारत का इतिहास कुछ अलग ही हुआ होता, भारत का विभाजन भी नहीं हुआ होता, और हम ऐसी एक महाशक्ति पूरे विश्व में हम बन जाते कर सकते थे। लेकिन हुआ नहीं। लेकिन इसके लिए हम तो इतिहास जो हुआ इन द पास्ट, उसको तो बदल नहीं सकते, हम पार्टीशन को बदल नहीं सकते, बट वी कैन चेंज एंड वी मस्ट चेंज द इल इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़े, और इसका सबसे बड़ा एक कथन, नैरेटिव विनायक दामोदर सावरकर के किताब में मिलता है। उनकी जो किताब है 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आप पढ़िए, रोमांचकारी एक किताब है, हाउ इन हिंदूज एंड मुस्लिम्स फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश टुगेदर। वही बात हमें 21वीं सदी में फिर से करना है, और यदि हम करेंगे तो हम अमेरिका से भी आगे जाएंगे, चीन से भी आगे जाएंगे। सही बात कही सुधीर जी आपने। દર્શક મિત્રો, આપણા ત્યાં ગુજરાતમાં ગાંધીજીએ એક એવા ટ્રેડ યુનિયનની સ્થાપના કરી હતી જેના પ્રમુખ એ એક મોટા ઉદ્યોગપતિના બહેન હતા, અને એમની સાથે શંકરલાલ બેન્કર જે જોડાયા તે પણ એક બહુ જ જેને કહી શકાય કે ધનાઢ્ય કુટુંબમાંથી આવતા હતા. પણ એ સંસ્થા જેને મજૂર મહાજન નામે ઓળખાતી હતી એને મહાત્માજીએ એક ચાવી આપી હતી. ચાવી એટલે તમારા વિવાદનો ઉકેલ સંવાદથી લાવવાનો, અને સંવાદથી ન આવે તો લવાદથી લાવવાનો, એટલે આર્બિટ્રેશનથી લાવવાનો.
આ વિચારધારાએ 100 વર્ષ સુધી આ શહેરમાં અમદાવાદમાં જે માન્ચેસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે ઓળખાતું હતું, ટેક્સટાઇલ વર્કર્સને માલિકો સાથે એકજૂટ થઈને કામ કરતા રાખ્યા. જે જેનીવામાં લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ પણ આ વિચારધારાથી પ્રભાવિત થયું અને એના કારણે મજૂર મહાજનના નેતાઓ જીનીવા વિશ્વ મજૂર સંસ્થાનમાં પણ બહુ કાર્યરત અને એક્ટિવ રહીને પોતાનું પ્રદાન કરતા રહ્યા. આ એ રાજ્ય છે જ્યાં વિવાદનો ઉકેલ સંવાદથી અને સંવાદથી ન ઉકેલાય તો લવાદથી લવાની વાત એ એક संस्कृतिનો भाग છે. सुधीर जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल महात्मा जी ने जो कही थी बात उसके साथ जुड़ती है, मगर मैं एक चीज समझ सकता नहीं हूं कि हमारे यहाँ एक प्रबल मत खड़ा करने में, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का भी प्रदान है, जिसके मुताबिक हिंदू हमेशा राष्ट्रभक्त है और मुस्लिम समुदाय की राष्ट्रभक्ति खुलकर व्यक्त करने में आए तभी स्वीकृत है, तब तक वो राष्ट्रभक्त नहीं है. इस विषय पे आपका क्या कहना है? क्योंकि हम जब तक राष्ट्रभक्ति के इस मुद्दे पे विभाजित रहेंगे या हमारी सोच में कहीं न कहीं अलगाव रहेगा, तब तक तो हम एक साथ जुड़ के काम नहीं कर सकते. बिल्कुल सही कहा आपने कि राष्ट्रभक्ति को हमें धर्म के तकाजे पर हम डिटरमिन नहीं कर सकते. पेट्रियोटिज्म कैनॉट बी डिटरमिन्ड बाय which religion a person belongs to. पेट्रियोटिज्म हिंदुओं में भी है और मुसलमानों में भी है. और भारत की जो स्वतंत्रता का आंदोलन हम देखेंगे, दिस इज द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. जी, आजादी का अमृत महोत्सव हम पीछे मुड़कर देखें. अभी मैंने 1857 का उदाहरण दिया. हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़े और सावरकर ने लिखा है. बाद में सावरकर के विचार अलग हो गए और वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट हो गए, अलग बात है. मैं और एक उदाहरण देना चाहता हूं. खान अब्दुल गफार खान फ्रंटियर गांधी कहलाते थे. महात्मा गांधी के अनुयायी. अहिंसा के मार्ग पर उन्होंने खुदाई खिदमतगार बनाई. पार्टीशन का विरोध किया और इसके लिए अंग्रेजों ने भी उन्हें जेल में भेजा, पाकिस्तान ने भी जेल में भेजा. ऐसे महात्मा गांधी के अनुयायी खान अब्दुल गफार खान, वो तो सच्चे मुसलमान थे. तो मुस्लिम समाज में भी ऐसे बहुत सारे देशभक्त मिलेंगे. तो इसलिए यह कहना कि हिंदू नेचुरली पेट्रियट है, नेशनलिस्ट है, लेकिन मुसलमानों को अपनी पेट्रियोटिज्म ये बार बार प्रूव करना पड़ेगा, यह मुस्लिम समाज को उनके मन में एक शंका पैदा होता है कि क्यों वी आर पार्ट ऑफ द सेम लैंड. और जैसे डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा, हिंदू हो या मुसलमान हो, डीएनए तो एक ही है. धर्म अलग अलग है, पूजा पद्धति अलग है. इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम आपके पेट्रियोटिज्म को क्वेश्चन कर सकते हैं. तो मेरा आज एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सेवक है या समर्थक हैं, मैं उनसे आग्रहपूर्वक मैं ये कहना चाहता हूं कि कृपया भारत को जोड़ने के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार की धर्म के नाम पर तोड़ना बंद कीजिए. लेकिन साथ साथ मुस्लिम समाज को भी इस पर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि मुस्लिम समाज में जो कट्टरता आई है, जो फैनेटिसिज्म आया है, जो कुछ लोग सिरफिरे लोग जो खिलाफत यानी खलीफा, अब मॉडर्न खलीफा की बात करते हैं और टेररिज्म का समर्थन करते हैं, उसके खिलाफ मुस्लिम समाज में भी आवाज उठना चाहिए. वो खिलाफत की बात कर रहे हैं. हाँ. तो यह जो काम है, जहां हिंदू में एक कट्टरता आती है, इसका विरोध हिंदू करें. जो मुसलमानों में कट्टरता है
उग्रवाद है उसका विरोध मुसलमान करें, ताकि हम दोनों में एक नया अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं डॉक्टर व्यास जी, कि जैसे हमें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करना पड़ेगा, उसी प्रकार से इंडिया पाकिस्तान के मित्रता के लिए, सहयोग के लिए भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि पार्टीशन की वजह से यह हिंदू मुस्लिम दूरी भारत में बढ़ी है, और पाकिस्तान में भी जो अल्पसंख्यक थे, हिंदू सिख, ये तो इन पर तो बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, आज भी हो रहा है। तो भारत के अच्छे लोग, सद्बुद्धि के लोग, पाकिस्तान में जो अच्छे लोग हैं, सद्बुद्धि के लोग हैं, इनके बीच में भी एक सेतु बंधन का काम होना चाहिए। और इसमें भी डॉक्टर मोहन भागवत जैसे अच्छे लोग इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैं कहूंगा कि डॉक्टर मोहन भागवत पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के राजनेताओं को अपनी बात समझाएं और उनकी जो बातें हैं वो भी सुने। सही बात कही आपने, मगर मैं थोड़ा सा इसके बाद खुद असमंजस में हूं, कंफ्यूज हो गया हूं। आपके विचार के अनुसार एक और द्रोणा और विरोध, और दूसरी ओर शांतिमय सहअस्तित्व की बात, यह दोनों परस्पर विरोधाभासी प्रभाव के चलते हुए संतुलन कैसे साधा जाएगा, और कौन संतुलन साधने में अहम अपना रोल करेगा, या कौन संतुलन साधने के लिए खुद आगे आके ये पूरी परिस्थिति अपने काबू में लेगा? देखिए, आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे आरएसएस को विरोध करने वाले, वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन लेते हैं। वो आरएसएस के साथ संवाद की बात नहीं करते हैं, वो केवल विरोध की बात करते हैं। इससे तो सेतु बंधनम नहीं होगा, और आरएसएस के लोग भी अपने विरोधी जो है, अपने विरोधियों के साथ संवाद करने की आज मानसिकता उनमें नहीं है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी की शासन आने के बाद, हुकूमत आने के बाद तो और विरोधकों के खिलाफ एक प्रकार का एक कैंपेन चला है। मैं इसलिए यह एक कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने विरोधियों को अच्छी तरह से समझे। कुछ सवाल हैं जिसमें उनके विरोधी बहुत लेजिटिमेट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एक उदाहरण, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर जो विरोधाभास है, मोहन भागवत जी स्वयं कहते हैं कि जो भारत में जो भी लोग हैं, जो भी यहां रहते हैं, वो सब हिंदू है। दिस इज वेरी क्वेश्चनेबल, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। आज यहां के सिख भी वो नहीं मानते कि हम हिंदू हैं। यह बात यदि पंजाब में जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग या डॉक्टर मोहन भागवत जी कहेंगे कि सिख सब हिंदू हैं, तो सिख नहीं मानेंगे, क्रिश्चियन नहीं मानेंगे, मुसलमान नहीं मानेंगे। तो क्यों इस पर अड़े रहना? यदि इसी बात को हम आगे लेकर भारत हिंदू राष्ट्र है यही कहते जाएंगे, तो पंजाब हमसे अलग हो जाएगा, कश्मीर अलग हो जाएगा, पूर्वोत्तर अलग हो जाएगा। यह बात तमिलनाडु में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या हम आगे चलकर भारत को खंडित देखना चाहते हैं? फिर से भारत को तो जोड़ने की बात होनी चाहिए, तोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हिंदू ही राष्ट्रीयता है, यह गलत है। डॉक्टर मोहन भागवत जी के प्रति मेरे मन में बहुत आदर है, गौरव है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि सब भारतीय हिंदू हैं, यह उनका कहना बिल्कुल गलत है। फिर से हम वही बात पे आके खड़े रहते हैं कि ये चौराहे से हम कहां जाए। और आज की परिस्थिति में जबकि ध्रुवीकरण की राजनीति चुनाव जीतने का एक असरकारक उपाय बन चुकी है, उस देश में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और परस्पर विश्वास और दूसरे के मजहब के लिए सम्मान का भाव प्रकट होना या ना हो, तब तक
इस तरह की एकता की बातें क्षणभंगुर लगती है, जो ध्रुवीकरण का एक हल्का सा झटका लगते ही टूट जाती है। तो क्या इस तरह की परिस्थिति के चलते हुए भारत की प्रगति और आंतरिक सुरक्षा बरकरार रह सकती है? क्या हम वो प्रगति के मार्ग पे चल सकते हैं जो हमें कल ले जाके विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, या कल ले जाके विश्व की सबसे बड़ी शिक्षण व्यवस्था या ज्ञान से जुड़ी हुई आराधना की परिस्थिति में लाकर रख सकती है? डॉक्टर व्यास जी, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर गंभीरता से चिंतन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए और उसके आधार पर सेतु बंधन का काम होना चाहिए। जब मैं भारत की बात करता हूं, मैं केवल 1947 के बाद जो भारत बना है उस पर मेरी नजर नहीं है। लेट अस लुक एट सिविलाइजेशनल इंडिया, यानी जो 5000 वर्ष से भी पुराना जो हमारा इतिहास, 5000 वर्ष, 5000 ईयर्स और इवन परहैप्स लॉन्गर जो भारत है, भारत एक सिविलाइजेशनल फैमिली है जिसमें आज अलग अलग राष्ट्र बने हैं। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है। ये एक ही सिविलाइजेशन के मेंबर्स हैं। यहां अलग अलग धर्म हैं। इतिहास जब चलता है, विभिन्न धर्म तो आते हैं, कोई कहां मेजॉरिटी है, कोई कहां माइनॉरिटी है। ये तो उनकी आजादी है। इट्स अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन विच इज पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। सत्य को पाने के लिए रास्ते अलग है, जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में, रास्ते अलग है लेकिन लक्ष्य, डेस्टिनेशन एक है जी। तो आज हमें पूरा ये जो हमारा सिविलाइजेशनल फैमिली है, यहां के सभी मजहब, सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना, जी, नॉट जस्ट टॉलरेंस बट रिस्पेक्ट, जी, और वही भावना मुसलमानों में भी होना चाहिए, क्रिश्चियंस में भी होना चाहिए और दूसरों में भी होना चाहिए। जी, जब और इसकी जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप आज भारत को करना चाहिए। आज क्योंकि इन साउथ एशिया वी आर द लार्जेस्ट कंट्री, वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन नाउ क्लोज टू 140 करोड़। तो क्या ये हमारा दायित्व नहीं बनता है? तो फिर एक बार ये जो हमारी एक बहुत ही एक समृद्ध एक विरासत है, सिविलाइजेशनल विजडम है, आध्यात्मिक एक धरोहर है, इसे देखकर हमें फिर एक बार भारत, आज का जो भारत है, इसको भी जोड़ना है और पूरे इस दक्षिण एशिया सिविलाइजेशनल इंडिया, इसको भी जोड़ना है। इसके लिए आपने जो एक शब्द इस्तेमाल किया, इतना सुंदर शब्द है, सेतु बंधनम। सेतु बंधनम हम अंदर करें, भारत के अंदर, और भारत के बाहर भी करें। और इसका सबसे एक प्री कंडीशन है, एक प्री कंडीशन यह है कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार की हिंसा हम होने नहीं देंगे। हम दंगा मुक्त भारत बनाएंगे, हिंसा मुक्त भारत बनाएंगे। सुधीर जी, आज की चर्चा धर्म के इर्द गिर्द घूमती रही, मगर सरदार साहब ने हमें 550 से ज्यादा रजवाड़े का एकत्रीकरण करके एक देश दिया था। क्या उस देश को हम कहीं धर्म के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे, कहीं और कोई वजह के नाम पे, कहीं दो राज्यों के बीच में इलेक्टोरल बैलेंस करने के लिए, एक या दूसरी वजह से क्या हम हर रोज तोड़ नहीं रहे हैं? आजादी के बाद का अगर कोई भी काम हमने किया है तो देश को तोड़ने का क्या ऐसा लगता है आपको? मेरे पास मजबूरी है मेरी, करीब 1-1.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं है, मगर ये जो मुद्दा है, ये मुद्दे पे भी नहीं लगता आपको कि चर्चा खुलकर होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं आज गुजरात में हूं, आमने सामने बातचीत हो रही है, और गुजरात ने महात्मा गांधी को, देश को, विश्व को दिया है
और गुजरात ने ही सरदार पटेल को दिया है। सरदार पटेल ने भारत को एक बनाने में उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा। तो इनके रास्ते पे हम यदि जाएंगे तो भारत फिर एक बार बहुत मजबूत राष्ट्र बनेगा और इस मजबूती के आधार पर एक श्रेष्ठ भारत बनेगा, दुनिया को रास्ता दिखाने वाला भारत बनेगा। जी। इस उदात्त विचार के साथ, इस नोबल थॉट के साथ मैं समझता हूं कि हम आज की इस चर्चा को चर्चा को समापन की ओर समाप्त ले करें। जाएंगे। और मैं महात्मा गांधी की इस पावन धरती को फिर एक बार नमन करके मेरे वाणी को विराम देता हूं। सुधीर जी धन्यवाद, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। काफी अहम मुद्दों पे चर्चा हुई। आमतौर पे ऐसे मुद्दों पे चर्चा करने से हम भागते हैं और शायद ये कोई टेलीविजन मीडिया पे इस तरह की चर्चा हो रही हो, ये भी मेरे ख्याल से तो इस तरह का एक अनूठा प्रसंग है। तो दर्शक મિત્રો, આપણે આજે જે ચર્ચા કરી તે આ દેશ મજબૂત કઈ રીતે થાય, ધર્મના નામે આપણને તોડવાના પ્રયત્નો થાય, ભાષાના નામે તોડવાના પ્રયત્નો થાય, ક્યાંક રાજકીય કારણોસર આપણને ડિલિમિટેશનના નામે તોડવાના પ્રયત્નો થાય, ક્યાંક અસમાનતાના કારણે આપણે એકબીજા સાથે ઊભા ન રહી શકીએ એ રીતે દેશને તોડવાના પ્રયત્નો થાય। દોસ્તો, આ છીણી આ દેશની કાયા પર ચાલતી રહી છે, ક્યાં સુધી ચાલશે એ ખબર નથી, પણ આપણે જો બધા સાથે હોઈશું તો જ તાકાત છીએ। આ જે 5 આંગળીઓ જોડાય તો મુઠ્ઠી બને છે, એ મુઠ્ઠી જ તાકાત છે। અને જો આ મુઠ્ઠી ના બને અને એક એક આંગળી અલગ પડી જાય તો એનો કોઈ મતલબ નથી। ગમે તે ફિલોસોફી હોય, ગમે તે વિચારધારા હોય, છેવટે खुद से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है। ये बात हर राजनीतिक पक्ष को और हर राजनीतिक पक्ष के जो बंदे हैं उनको समझना चाहिए। देश सर्वोपरि है, देश हित सर्वोपरि है, देश हित में जो होता है वो सर्वोपरि है। इस मुद्दे के साथ हम चर्चा को समापन की ओर ले जाते हैं। सुधीर जी, आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। दर्शक मित्रों, तमारो पण खूब खूब आभार। शुभरात्रि। મળીએ ફરી एक नवा विषय साथे, नवी पेनल साथे।